آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ. تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ. کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے. آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ. زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے بارش کا قطرہ نہ ہو. وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا. وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا. جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا. جن اعمال پہ وعدے ہیں میں تمہیں پلا کے دکھاؤں گا. جن اعمال پہ وعدے ہیں ساری دنیا کو کچھ ہو جائے تو میں راحت بھی دوں گا، عفو بھی دوں گا، عافیت بھی دوں گا، اور تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں ایسے چنوں گا جیسے کانٹے چن دیتے ہیں اور باقی راحت رہ جاتی ہے، اور پھول میں سے، کانٹوں میں سے پھول، تمہاری زندگی پھول ہوگی. یہ عمل وہ کر رہے ہیں، یہ زندگی کا سبق وہ آپ بنا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا تانے دے گی، تسبیح خانہ کیا لینے جاتا ہے؟ یہی نماز یہاں پڑھ لے، یہ تسبیح یہاں پڑھ لے. کہتے ہیں نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. یہاں موجوں کا ایک نظام ہے جو میری عقل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن حقیقت ہے. حقیقت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کاغذ دیا اور مجھ سے کہنے لگا میں نے یا لطیف و یا ودود کو آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں بھی پڑھنا ہے، میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ میں ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گیا اور میری تسبیح پوری نہ ہوئی. میں تسبیح نہ سوئے ایسے پڑھ رہا تھا، تسبیح پوری نہ ہوئی. صبح اٹھا تو تسبیح میں بھی ساتھ پڑھی ہوئی تھی، پوری نہ ہوئی. میں نے خواب دیکھا. خواب میں زیادہ بیان نہیں کرتا زندگی میں، پر کوئی خواب ضرور بیان کرتا ہوں. اور ایک ذہن نشین رکھیے گا، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں. ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں. ہماری سوچیں، ہماری سارا دن کی کیفیتیں. ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بابا جی تھے، تو وہ کچھ اس طرح کے خواب بتاتے تھے. تو انصاری صاحب فرماتے تھے، بھائی اس بابے کو گوبھی نہ کھلاؤ، آلو نہ کھلاؤ، او بھائی اس کو گوبھی آلو نہ کھلاؤ، گیس اٹھتا ہے. پھر اس کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں. وہ خواب کیا تھا؟ صبح بابا جی اٹھ کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ایک جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا، صحت یابی کا، شفا یابی کا. تو اٹھا تو نے گھٹنا مار دی. تو اٹھا تو نے گھٹنا مار دیا، جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا. اور وہ اپنے بار پہ سنجیدہ تھے. تو وہ انصاری صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے، اس کو کہو کہ بھئی گوبھی نہ کھائے، آلو نہ کھائے. تو ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب خواب ہوتے ہیں. خواب ہی تو تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے بادشاہ بنا دیا تھا. وہ خواب کی تعبیر دی تھی انہوں نے، اور مصر کی حکومت کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ بنے تھے. اور وہ 3 بادشاہ ہیں جو انبیاء میں ہیں، ان میں یوسف بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں اور داؤد بھی ہیں. باپ بیٹا ہیں، داؤد والد ہیں، سلیمان بیٹا ہیں، اور یوسف. یہ 3 بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا. سڑک ہے، اس پہ بہت سارے لوگ، کہا کہ راستہ ہے، دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. میں بھی بھاگا جا رہا ہوں. اور بادشاہ، اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے، بادشاہ کچھ دے رہا. کہ سارے ادھر ادھر چلے گئے، اکیلا میں رہ گیا. راستہ بہت طویل ہے، میں اکیلا تھا. تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے، بادشاہ آگے ہے. تو کہا، میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں تھال تھے سونے کے، خوبصورت سے.
और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था। और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था। तो कहा उसी वक्त ख्वाब की दुनिया में मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि वाकई उस सारे मजमे में जितना भी दौड़ रहा था, मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो तस्बीह खाने जाता हो। उस मजमे में मैं अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था, अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था। तो ये एजाज, ये नेमत, ये सआदत सिर्फ मुझे मिली। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कहा मैं चल पड़ा। फिर ख्याल आया पूछूं ये हैं कौन जिन्होंने मुझे दिया? तो कहा वो उठ रहे थे। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम दाऊद है और इसका नाम सुलेमान मेरा बेटा है। और कहा कि तुझे ये तोहफे क्यों दिए? तुझे ये तोहफे इसलिए दिए हैं तू वो मुबारक नाम लेता है जिस मुबारक नाम के अंदर बख्त और दौलत है। बख्त और दौलत, बख्त और दौलत है। हम कुछ इस पढ़ के बाज़ वक़्त भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल अल्लाह के हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है। आप किसी कैमरे के आगे से गुजर जाएं, आप गुजर के भूल गए हैं पर कैमरे ने आपको महफूज कर लिया है। ये मिसाल समझ आ रही? ऐसे ही अल्लाह के यहाँ हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी दुर्वेश के यहाँ जाते हैं, या कोई दुर्वेश नहीं होता, मुझ जैसा किसी दुर्वेश का गुलाम होता है, खादिम होता है, उसकी महफिल में जाते हैं, आप जाए भूल गए। पर अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का निज़ाम वो कभी नहीं भूलता। वो लिख लेता है कि उस वक्त क्या बख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या तख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या दौलत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या इज्जत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या सरवत, कमाल और खैरें, बरकतें तकसीम हुई थी, और इसका भी हिस्सा उसमें लिख दो। इसलिए फरमाया जो अराफात में हालत एहराम में गुजर भी जाए तो उसका भी हज हो जाएगा। यौम अरफा हो, यौम अरफा हो, हज का दिन हो, हालत एहराम में जो सिर्फ गुजर भी जाए ना उसका भी हज हो जाएगा। क्यों? उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे की बरकत ऐसी है। इसी तरह बाज ऐसी नेकियां हमें हिस्से में बिन मांगे, बिन चाहे मिलती हैं, जिनको हम हकदार नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है। वो जैसे आज आप महफिल में आए हैं, हम मिल बैठ के या लतीफ़ो या वदूद पढ़ेंगे और जज्बों और कैफियतों से पढ़ेंगे और फिर अपनी थैली पे दम करेंगे। ये मिल बैठना ये अल्लाह के यहाँ बहुत 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 ज्यादा महबूब है और इसकी बहुत ज्यादा हैसियत और वकार है। आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर काला जादू होगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतें बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काली देवी का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे बदरूह का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जिन्नात को जाने अनजाने में सताया होगा और वो उस पे मुंतकिम होंगे, इंतकाम लेने का जज्बा होगा, और कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी पेशानी पे शकावत, जिसकी पेशानी पे बदबख्ती, जिसकी पेशानी पे लानत लिखी ही होगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स भी होगा जो अजली जहन्नमी होगा, पहले दिन से लिखा कि ये जहन्नमी होगा। हदीस में आता है कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पीछे कोई काली दुनिया होगी, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले लोग होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले रोग होंगे। पर याद रखिएगा
याद रखिए, इतना बड़ा मजमा जब बैठ के एक चीज को तलब करता है, और वो हो भी तलब वाला, हो भी तड़प वाला, हो भी जज्बे वाला, हो भी कैफियतों वाला, और इतना बड़ा मजमा बैठ के किसी चीज को जब तलब करता है, उसकी तलब, उसकी तड़प, उसके जज्बे पे एक गैबी निजाम का फैसला होता है, हत्ता कि जो तमाशा देखने आता है वो भी रंगा जाता है। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। हदीस में आता है ना, या अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं ये जिक्र की महफिल में एक बंदा ऐसे ही आया था, उसका मकसूद और था, उसका मतलब और था, ऐसे ही आया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों, ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। आपको इल्म ही नहीं है, कोई ऐसा रोग आपके साथ लगा हुआ है। एक दुर्वेश थे, अब मेरी तरफ देखना, उनके पास जो साइल आते थे लैन बनवा लेते थे, ऐसी लैन बनवाते थे। उनके अल्फाज थे, फरमाते थे ये काफ वाला है, उसको बंदे लेके एक तरफ खड़े कर देते थे। फरमाते थे ये लाम वाला है, उसको बंदे एक तरफ कर देते थे। अल्फाज बने हुए थे। फरमाते थे ये नून वाला है, उसको बंदे एक तरफ करके खड़ा कर देते थे। फरमाते थे ये जीम वाला है, उसको बंदे एक तरफ, मजमे को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे। जो काफ वाला होता था वो अंदर में अंदर का कुत्ता होता था, जो लाम वाला होता था उसकी पेशानी पे लानत लिखी होती थी, जो नून वाला होता था उस पे नजर बद होती थी, और जो जीम वाला होता था वो जादू से डसा हुआ होता था। फिर आप क्या करते थे, काफ वाले को कहते तो तू चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। लाम वाले को कहते तो चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। नून वाले और जीम वाले यहां आ जाए, उनका इलाज करते थे। एक दफा ख्वाब में किसी दुर्वेश ने उन्हें कहा, अल्लाह का बंदा, तुझे अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया है, फिर ये काफ वाले कहां जाएंगे? जो अंदर के कुत्ते हैं, जिन्हें कुरान कहता है उलाई का कलानाम बलहुम अजल, वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से बदतर होते। और ये लाम वाले कहां जाएंगे जिन पे लानत लिखी हुई है, ये भी तो तेरे हैं। और कहा कि ये बता, खोटे खरे फकीर के नहीं होते, पाक नापाक धोबी के नहीं होते, सबको नहीं धोता? सारे ही होते हैं, पाक नापाक मैले साफ धोबी का विरसा होता है, वो सबको धोता है, और खोटे खरे फकीर के कशकोल का हिस्सा होता है। तो फरमाया फिर जब छांटी करते थे, फिर लाम वालों को बिठा लेते थे, और किसको? लाम लानत वाला और काफ वाला, उनको ही बिठा लेते थे। फिर उनको इकट्ठा बिठा के ना सख्त इस्तिगफार करवाते थे, इस्तिगफार करवाते थे। और फिर होता क्या था, अब जरा गौर से सुनना, जो आज हम करेंगे, होता क्या था, उनमें कोई ऐसा होता था जो सिर्फ इस्तिगफार से करता था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे सिर हिलाता था। कोई ऐसा होता था जो वजह से करता था, कोई ऐसा होता था जो विजदान से करता था, जो ऐसा होता था कोई रो के करता था, कोई ऐसा होता था जो सिसक के करता था, कोई ऐसा होता था जो बिलक के करता था, जो ऐसा होता था जिसकी जुबान भी इस्तिगफार कर रही होती थी, उसका दिल भी इस्तिगफार कर रहा होता था, उसके जिस्म का रोआ रोआ भी। उनमें से कोई एक या चंद ऐसे होते थे जिनकी वजह से सबकी तौबा कबूल होती थी। अल्लाह कहता है जाओ, तेरे अंदर के कुत्ते को खत्म करके तेरे अंदर मैंने इंसान रख दिया। अल्लाह कहते है जाओ, तेरी पेशानी पे लानत खत्म करके मैंने रहमत लिख दी। मजमा जब बैठ के किसी चीज को मांगता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे तड़पता है,
मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है, और बंदों का काम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है? आए और चले गए कैसे? वो कदरदान आका वो उठे हुए कदमों के लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ या वदूद कह रहा। ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ, आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए, रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका दुनिया में तो मेरी आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर न बनाना, और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया, अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ ने, दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजद और विजदान, कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं, तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाय नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया, और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। ये सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, बुत दे दे, बुत दे दे, बुत दे दे। ऊँग आई तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया समद, ओ बेनियाज मेरा अल्लाह, अल्लाह समद, समद निकला तो लब्बैक सादैक लब्बैक आबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। या अल्लाह इस बंदे ने गलती से समद कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं, और मुझ में और बुत में क्या फर्क? मैं तो जवाब दूंगा बंदे को। हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। एक अल्लाह वाले थे, वो एक काम करते थे, उनकी महफिल में जो बंदे आते थे वो जादू वालों को एक तरफ बिठाते थे, उनकी नजरें देख लेती थी, जिन्नात वालों को एक तरफ बिठाते थे, नजरे बद वालों को एक तरफ,
बीमारों को एक तरफ बिठाते थे, फिर उनसे अमल करवाते थे, अमल करके दुआ होती थी, फिर उनको देखते थे, उनमें जो ठीक हो जाते थे उनको कहते थे जाओ आज के बाद आने की जरूरत नहीं, जो ठीक नहीं होते थे कहा कुछ बार फिर आना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यकीन जानिए आज इंशाल्लाह सारे ही ठीक होंगे। मैंने कौन सा दावा किया कि मैं ठीक करता हूं? मैं कौन सा दावा किया? मैंने कौन सा दावा किया? मेरा यकीन है आज हम जो मिल बैठे हैं जज्बों से आने वाला मजमा है, और इस एतवार को जो अमल होने वाला है हैरत अंगेज तौर पे फजर के बाद, आप यकीनन उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन मेरा यकीन है जैसे बाबा जी कहते थे ना कि अभी इनकी तकलीफ बाकी है, ये चले जाएं ये फिर आए, ये चले जाएं ये फिर आए, कि मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान। अच्छा ना, मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि एक वादा करेंगे मेरे साथ? क्या? मैंने कहा जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ ले जाएंगे। मैंने चंद दुर्वेशों से ये वादे लिए, एक और दुर्वेश भी थे, अल्लाह वाले थे, मैंने उनसे हाथ पकड़ा तो मैंने कहा आप वादा करेंगे जन्नत में जाएंगे? कहा अल्लाह भेजेगा तो जरूर जाएंगे, तो पर मेरे बगैर जाएंगे क्या? नहीं। और पता है उस वक्त मैंने क्या नियत की, और ये कई बार की, कि अल्लाह जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना और तेरी रजा के लिए पकड़ा है, अल्लाह फिर मैं भी उनके बगैर नहीं जाऊं। अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, क्योंकि जन्नत उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई है, मनसबों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, शेखुल वज़ाइफ के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी करीमी होगी जो अमल हम करेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके आज जादू टूटेंगे, बंदिशें टूटेंगी, हालात के मुकद्दर और हालात के सिकंदर बनेंगे। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, पता है इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई, तू कहता नहीं हुई तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ, तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल, इसके साथ सबकी कबूल है, सबकी कबूल। हाँ हकीकत न ऐसे, हकीकत न ऐसा है। बाज बंदे ऐसे होते हैं महफिल में बैठे हुए, उनके बारे में आम आदमी नहीं समझता, वो कहते हैं ये बेहैसियत आदमी है, पर वो बेहैसियत आदमी ही उसी की हैसियत होती है,
اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا؟ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع، جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص کو ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اور بامراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور جھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے۔ وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مطابق تو آپ سچے ہیں، ایک سچے سفر پہ چلے ہیں، ایک سچی راہوں پہ چلے ہیں، ایک سچا سودا لینے آئے ہیں، ایک سچی زندگی لے کے چلے ہیں، اور ایک سچی منزل پہ چلے ہیں، اور اللہ کرے ایک سچے تسبیح خانے میں آئے ہیں۔ بس اب آخری ہے کہ اللہ مجھے سچا بنا دے، باقی تو سب کو سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ وہ سچا اس کا حبیب سچا، وہ سچا اس کا جبریل سچا، وہ سچا اس کا کلام سچا، وہ سچا اس کا نام سچا، وہ سچا اس کی عظمتوں کے بول سچے۔ جو اس کی عظمتوں کے بول سنے، جو اس کی عظمتوں میں بول میں ڈوبے، جو اس کی عظمتوں کے بول اس کے دل میں اتر جائیں، دل میں اتر جائیں، وہ دنیا کا سچا ہے جو سچے بولوں کو سچا کہے، سچی محفلوں کو سچا کہے، سچے رب کو سچا کہے، اور سچی راہوں کی طرف چلے، تو وہ سچا ہے انشاءاللہ۔ اور سچوں کی محفلوں میں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جاؤ اگر دنیا میں پریشان ہونا نا، غم زدہ ہونا، تو پھر سچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، ان کے ساتھ مل جانا۔ کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے ان سچے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جانا، تم بھی سچوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور تم سچوں میں شامل ہوگے تو تمہارے کام سارے بن جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہیں منزلیں مل جائیں گی، تمہاری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے حالات سنور جائیں گے، اور تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں، دولتیں بن مانگے ملیں گی، یا پھر مانگے بھی ملیں گی تو دے گا اپنی شان کے مطابق وہ کریم۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، وہ اپنی شفقت عطا اور شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ سچی زندگی کے سچے بول ہیں۔ آج کس کا فیصلہ ہونا ہے؟ آج کون ہے جو بے بسی سے نکلے گا؟ کسی کی بے بسی بیماری ہے، کسی کی بے بسی جادو ہے، کسی کی بے بسی فقر، غربت، تنگ دستی ہے، کسی کی بے بسی جگر میں چھپی ہوئی ہے، اس کی جگر میں بیماری ہے، کسی کی بے بسی آنکھوں میں، دماغ میں، کسی کی بے بسی دل میں ہے، وہ دل کا مریض ہے، کسی کی بے بسی معدے میں، کسی کی گھٹنوں میں، کسی کی پٹھوں میں، کسی کی کہاں گھسی ہوئی ہے۔ وہ بے بسی آج کس کی ختم ہوگی، اور کس کی بے بسی کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور انشاءاللہ ٹوٹیں گی۔ اس کے نام کی برکت سے، اس کے نام کی طاقت سے، اس کے نام کے جلووں سے، اس کے نام کی کائنات سے آج بے بسی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی ٹوٹے گی۔ کوئی ایسا ہوگا جو بیچارہ جنات کی آخری سختیوں میں گھرا ہوا ہوگا،
घर में हर वक्त बीमारियां, तंगियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल। उसकी ज़िंदगी में खुशी नाम की चीज़ ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में खुशी नाम का कोई एक ज़र्रा भी नहीं है। आज उसकी ज़िंदगी में ऐसी राहत आएगी और वो सुख का सांस लेगा और कहेगा ऐसे है जैसे मैं घुटन ज़दा ज़िंदगी से निकला हूँ। आज कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कर्जों में डूबा हुआ होगा और वो कहेगा कर्जों पे कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाइयों पे महंगाइयां बढ़ रही हैं, मैं कैसे निकल सकूंगा? अल्लाह कहते हैं नामुमकिन तेरे लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। क्या ख्याल है? हमारे लिए भी नामुमकिन है, अल्लाह के लिए है? अल्लाह तो लफ्ज़ नामुमकिन से भी पाक है, अल्लाह तो लफ्ज़ नामुमकिन और बोलों से भी पाक है। नामुमकिन तेरे लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, अल्लाह के लिए तो नहीं है। अल्लाह कहता है इसको निकाल दो कर्जों से, इसको खुशहालियां दे दो। कोई कहता है कोई ऐसा वक्त भी होगा मुझे दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा, मुझे कमली वाले का दीदार होगा, मोहम्मद आले मोहम्मद का दीदार होगा, मोहम्मद असहाबे मोहम्मद का दीदार होगा, मोहम्मद औलियाए मोहम्मद का दीदार होगा और मैं ख्वाबों में उनके जलवे देखूंगा, मैं ख्वाबों में उनकी सूरत और सीरत देखूंगा, मैं ख्वाबों में उनके नक्शे देखूंगा और क्या पता ख्वाबों में उनके साथ गुफ्तगू भी हो जाए। वो मेरी खुशकिस्मती का दिन या रात होगी। आज वो पर्दे भी हटने का वक्त है। ये पर्दे होते हैं, हिजाबुल अब्सार होता है, ये पर्दे होते हैं। जब पर्दे हट जाते हैं तो फिर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दूसरे आंखें खोलते हैं दीदार के लिए। जो उसका आशिक होता है वो आंखें बंद करता है, बंद होते ही दिल के आईने में है तस्वीर यार। हाँ, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज किसके हाथ दीदार कैसे होगा? तो मेरे जी में है कि हम अभी दीदार करते हैं, मुराकबे दीदार ना करें। क्या ख्याल है? आज हम मुराकबे दीदार करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मुराकबे दीदार से के लिए हम एक हस्ती से पूछते हैं, उन हस्ती को पूछते हैं, उनसे अर्ज करते हैं कि आपने मुराकबे दीदार कैसे किया था। उस हस्ती से पूछते हैं आपने मुराकबे दीदार, वो है शेर खुदा हैदर कर्रार जिनके साथ था लश्कर जर्रार, और वो थे दामाद मुस्तफ़ा, और वो थे हसनैन करीमैन के बाबा, और वो थे सैयदा फातिमा के शौहर, और वो थे कायनात के इल्म के बाब, और वो थे जिनके साथ थी मोहब्बतें, और उनका नाम है अली करमल्लाहु वजहुल करीम। उनसे पूछते हैं कि आपने मुराकबे दीदार कैसे किया, आप बताएं। तो पता है वो क्या जवाब देंगे? कहेंगे अगर मुराकबे दीदार करना है ना, मैंने अल्लाह की अजमत के जो बोल बोले हैं तुम भी बोल लो। किन कैफियतों के साथ? वो जरा कैफियतों का ख्याल करना। किन अजमतों के साथ? उनको जरा अजमतों का ख्याल करना। किस वजद और विजदान के साथ? उसका जरा ख्याल करना। किस उरूज के साथ? उसका ख्याल करना। और उस पे डूब के फिर मुराकबे में जाना, और फिर तुम्हें दीदार की कैफियत नसीब होगी और दीदार के जलवे नसीब होंगे। हाँ, तुम्हें दीदार मिलेगा, कैफियत मिलेंगे। तो क्या ख्याल है? हज़रत अली से पूछे हैं? पूछे? अच्छा, उनसे अगर पूछेंगे तो उनका जवाब ये भी साथ होगा कि देखो मैंने किस हस्ती से सारी जिंदगी मांगा है। ख्याल करना, किसी और के दर पे ना जाना, उस दर पे जाना जिस दर पे अली गए थे, और वो अल्लाह का दर है। और ये बोल जो आज आप दुआए अली के नाम पे अभी सुनने वाले हैं, ये वो बोल है जो दीदार के लिए, जलवों के लिए, जो कैफियत के लिए, जो इदराक के लिए, जो एहसास के लिए, और जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, और जो बख्त के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, बख्त के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, बख्त के दरवाजे, बरकत के दरवाजे खुलवाने के लिए बस जज्बा चाहिए, विजदान चाहिए। हाँ,
ये मुराकबा है बहुत ताकतवर, और इसके जरिए से बड़े बड़े दीदार और जलवे होते हैं। आए फिर हजरत अली से पूछते हैं, दरूद पाक भी पढ़ते हैं और अली से पूछते हैं, हमने तो सारी जिंदगी, हम अली से एक लफ्ज जरा कह देंगे, हमने सारी जिंदगी इश्क लैला सीखा, आपने सारी जिंदगी इश्क मौला सीखा, जरा हमें भी इश्क मौला सीखा। हमने सारी जिंदगी इश्क लैला सीखा और आपने सारी जिंदगी इश्क मौला सीखा, तो आप अपने मौला का कोई हमें भी जलवा दीदार दिखा देंगे? तो वो कहेंगे आए हम दिखाते हैं, क्योंकि सखियों का दर है ना, सखी शहनशाहों का दर है। तो सखी शहनशाहों का दर साइल सवाली को, फकीर मंगते भिखारी हम जैसे भिखारियों को खाली तो नहीं भेजता। तो सखी के दर पे जाते हैं, जरा दर में जाने से पहले अपने आप को जरा पाक कर लें दरूद पाक पढ़ के। हाँ, दर पे जाने से पहले कोई हदिया भी ले लें दरूद पाक पढ़ के, दर पे जाने से पहले कोई जरा तोहफा भी ले लें दरूद पाक पढ़ के, और दर पे जाने से पहले और कुछ थोड़ा सा अपने आप को समेट भी लें, और दर पे जाने से पहले थोड़ा सा आप खुशबू भी लगा लें, दरूद से बड़ी खुशबू कोई नहीं, और दर पे जाने से पहले मुअत्तर भी हो जाए, दरूद से बड़ा इतर कोई नहीं, और दर पे जाने से पहले कुछ फूल भी ले लें और कुछ कलियां भी ले लें, और सारी कायनात फूलों को जो खुशबू मिली है वो दरूद की बरकत से मिली है। हाँ, आए फिर दरे मौला पे जाने से पहले जरा दरूद पढ़ लें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये दरूद पाक भी और जितने भी नफली अमाल करते हैं वो सब अपने मरहूमीन को, पूरी उम्मत को हदिया किया करें, पूरी उम्मत को हदिया करेंगे, तमाम जिन्नात को हदिया किया करें, तमाम फरिश्तों को हदिया किया करें, और अपने प्यारों को न भूला करें। आए फिर आज का हमारा बाब जो है वो हमारा बाब 28 से शुरू करेंगे, और इसको घर भी जाके पढ़ेंगे, इस पे उंगली फेरते जाएंगे, और फिर वो उंगली अपनी फिर आंखों पे, सीने पे फेरेंगे, और इसके तर्जमे पे गौर करेंगे, और बहुत तवज्जो और ध्यान से इस दुआ को सुनेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सबक है, और ये हमारी बहुत बड़ी सआदत है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खैर का है जो हम सुनने वाले हैं। और तवज्जो से, ध्यान से, जब अलगौस अपनी मसाइल का तसव्वुर करते हुए आमीन कहना है, तो तवज्जो से इस दुआ की तरफ सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंगली को आंखों पे फेर दें, दिल पर फेर दें। कमाल हो गया, कमाल हो गया, उसके करम का, उसके फजल का कमाल हो गया, उसकी अता और उसकी शफकत का कमाल हो गया, उसके देने का, उसके फजल का कमाल हो गया। यह है मांगना, यह है तड़पना, यह है बिलकना, और यह है लिपटना, लिपट जाना। जिंदगी में सुकून, चैन, राहत और रहमत होगी
तो गुमान कर बेटे आंखों की ठंडक होंगी, तो गुमान कर इन बेटों के माथे पे बख्त होंगे, नसीब होंगे, मुकद्दर होंगे, इज्जत होगी, राहत होगी, रहमत होगी, अता होगी, शफकत होगी, मेहरबानी होगी। तो गुमान कर मेरा खात्मा ईमान पे होगा, तो गुमान कर मौत दीदार मुस्तफ़ा होगा, तो गुमान कर आले रसूल का दीदार, तो गुमान कर असहाब रसूल का दीदार, तो गुमान कर बड़ी बड़ी हस्तियां पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, जुनैद बगदादी, बड़ी हस्तियों का दीदार। मेरे बंदे तू गुमान कर, और गुमान भी यकीन के साथ कर, गुमान भी ताकत के साथ कर, गुमान भी गुमान के साथ कर, यकीन भी यकीन के साथ कर। फिर देख मैं कैसे कर दिखाता हूं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।